It is. So over to you, and do tell us what to do with whatever money we have. I'm sure people would be ready with their queries. Good evening, all. Good evening, all. I am Anurag Agarwal. So today I'll be taking a session. So I just happened to forward a message on. I just made a message and I forwarded that on the Lilo group about an FDs, and somehow I was happy to see some queries. So I have a company by the name of BFC Capital, which is into wealth management and financial planning services. So we are into this profession for almost 17 years now, and we are registered with our regulator SEBI as an advisor. So when it comes to a regulator, Securities and Exchange Board of India, it categorizes people who are into this capital market between agents and advisors. So you have to classify between whether you will work as an agent or you will work as an advisor. So we are working as an advisor, and it's been last 7 years that SEBI has asked us to do so. And till now, across India, there are almost 1,400 SEBI registered advisors. There are more than 2.5 lakh people who are into this business. There are hardly 1,400 advisors across India, because there are certain parameters that needs to be fulfilled. There are certain examinations that you need to pass before being classified as an advisor. So shall I start with the session now? Are we all on the same page? Yes. Yeah. So I'll just let's get started. My screen sharing. Are you all able to view the screen? Yes, It's we are. visible. So as I told you, I have a company by the name of BFC Capital, which is into wealth management and financial planning services. Now the point is, when we talk of investments, when we talk of financial planning, the first question that I ask people: why do you need financial planning? What is the actual need? Why can't we, keep our money in our saving bank accounts? Why can't we spend it? So whatever we earn is basically divided into two parts. Either we consume or we save. So can we have a third part of it? The answer is no. I'll request all members to please be more interactive. Let us make this as a dialogue rather than a monologue. So either we can consume or we can save. So जो मेरा consume हो गया वो खत्म हो गया है, जो मेरा save हो गया है, that is again divided into two parts. उसको या तो मैं ट्रेडिशनल सेविंग्स कर सकता हूं उसकी, या तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं. तो व्हेन आई टॉक ऑफ ट्रेडिशनल सेविंग्स में आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज, आरडीज, पोस्ट ऑफिसेज, जहां मुझे ये मालूम है मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, जहां मुझे मालूम है कितने समय के लिए लगा रहा हूं, जहां मुझे ये मालूम है कि मैं कितने समय मुझे कितना पैसा वापस मिल जाएगा. That is one part of my savings. Or else what I can do is I can go for investments, which include stocks, mutual funds, commodities, जो कि थोड़ा सा comparatively riskier side पे होते हैं. तो इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. When I say traditional savings, when I say investments, any idea what is the current FD rate in India? 3%. नहीं मैम, इतना भी कम नहीं है अभी. We are not so much developed. It's 5%. SBI is offering 4.9. So Kotak Bank and HDFCs are offering 5. So मैंने एक एग्जांपल लिया 5.5% का, कीपिंग इनटू अकाउंट कुछ अगर सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो सीनियर सिटीजन्स आर बीइंग ऑफर्ड 5.5% पर एनम फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो अगर मैंने 1 लाख रुपए 5.5% की रेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट एफडी करता हूं तो मुझे 5,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर मैं 30% के टैक्स स्लैब में फॉल करता हूं तो इस पे 1,650 रुपए का मेरा टैक्स कटेगा, जिसमें से कि हो सकता है कुछ पोर्शन बैंक मेरा एज टीडीएस काट लेगा, कुछ पोर्शन जो उसने टीडीएस के ऊपर बचा है वो मुझे अपना रिटर्न फाइल करते समय टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा. क्या इसमें किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए? रोली, यू सेइंग समथिंग? No, I'm not saying. I was okay. So इसमें ये टैक्स स्लैब 30, अगर कोई ऐसा है जो who falls in a 20% टैक्स ब्रैकेट, तो that person will pay tax according to 20%. जो भी जिस स्लैब में फॉल करेगा उस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है.
एफडी का इंटरेस्ट पे टैक्स सेव नहीं किया जा सकता, कम व्हाट मे. There's absolutely no way you can save tax on interest. हाँ, provided your tax this interest amount is less than 10,000. 10,000 रुपए तक का अगर टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता. 10,000 के ऊपर जितना भी होता है उस पर टैक्स लगता है. So the money earned is 3,850. 5,500 रुपए का मैंने अगर इंटरेस्ट अर्न किया है, 1,650 रुपए टैक्स में चला गया. So 3.85% is what is left with. ये लेटेस्ट इन्फ्लेशन का डेटा है. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी है, इस 7.61. यहां आप देखोगे मैंने सीपीआई लिखा है. सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. जब आप महंगाई की बात करते हो, महंगाई कई तरह की होती है. एक चीज होती है ब्रॉडली क्लासिफाई होती है सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एक होता है डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स. आप लोग न्यूज़पेपर में जो ज्यादातर पढ़ते होगे वो डब्ल्यूपीआई पढ़ते हो, बिकॉज डब्ल्यूपीआई ज्यादा पब्लिश होता है. हम लोग कंज्यूमर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे. वी कंज्यूम पेट्रोल, वी कंज्यूम ऑयल, मिल्क, ब्रेड, व्हाटएवर. तो हमें सीपीआई से मतलब है. द लेटेस्ट सीपीआई डेटा एज ऑफ अक्टूबर इज 7.61%. तो आई एम अर्निंग 3.85% एज इंटरेस्ट फ्रॉम माई एफडी. And the inflation is 7.61%, so I'm getting a negative return of minus 3.76%. So which is what I reiterated in my message. वो मैंने उसको राउंड ऑफ करके कहा था कि in case if you plan to do an FD at this point of time, I suggest वो पैसा आप कहीं कंज्यूम कर लो, because next year आपको 4% की नेगेटिव ग्रोथ मिलेगी अपनी FD पे. किसी की कोई क्वेरी है यहाँ पे अभी, और shall I proceed a bit? I have one question. This FD is for 1 year, like this interest received. ये देविका, इसमें ये होता है कि मैंने ये 1 साल का एग्जांपल लिया है. आज की डेट में करेंटली यू गो फॉर अ 1 year FD, यू गो फॉर अ 3 year FD. सब में किसी भी in case of SBI, the maximum rate SBI is offering is in 3 years, which is 5.05%. So 5% is the maximum rate. और अगर आप 5 साल की FD कराओगे तो 5 साल की FD पे रेट कम है vis-a-vis 3 years. Okay. So ये वो रीजन होता है because of which I am forced to look at other investment options apart from bank FD, because bank FD में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है. Okay, so यहाँ एक KBFC टेक अवे है कि when I say my FD rate is 5.5%, it was actually minus 3.76%. So when we talk of FD, post tax, post inflation returns is actually what we are taking home. वो FD जो मुझे 5.5% की लग रही थी, वो 4.25% नेगेटिव दे रही है. अगर मैंने उसमें टैक्स माइनस कर दिया और उसमें इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर कर लिया तो. So the point is what to do now. अगर मुझे FD नेगेटिव रिटर्न दे रही है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी तरह से अगर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, एनी इन्वेस्टमेंट गिव्स यू रिटर्न्स इन वेरियस फॉर्म्स. कहीं आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, कहीं पे आपको डिविडेंड्स के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, कहीं पे आपको कैपिटल गेन्स के फॉर्म में रिटर्न मिलता है. कोई भी ऐसा रिटर्न जो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब सेविंग बैंक, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, इनमें से कुछ भी अगर ऐसा है तो वो आपको टैक्स से नहीं बचा सकता. वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आप उस पे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करोगे उस पे. इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड इन योर इनकम, राइट? अभी उसके बाद लेट्स कम, अभी अगर मैं ये कह रहा हूं कि एफडी में प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स? So the correct way of doing things is whatever we earn, in order of priority हमें इसको इस तरह से spend करना चाहिए. सबसे पहले तो of course we'll do our unavoidable consumption. Ideally 25 to 30% of your monthly income should go into savings. ये आपको खुद को analyze करना है. ये एक generalized figure होती है 25-30% depending upon your individual lifestyle, your individual liabilities which you may have. जनरली 25 से 30% आपकी सेविंग होनी चाहिए. सो इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, तो 25 से 30 हजार रुपए आइडियली यू शुड सेव.
जब भी मैंने अनअवॉइडेबल कंजम्पशन कर लिया, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिस्क प्लानिंग. मुझे अपने रिस्क को प्लान करना है. व्हेन आई से रिस्क प्लानिंग, आई मीन life insurance, I mean health insurance, I mean office or go down insurance. Now when I say life insurance simple चीज होती है term plan. Life insurance is not something like an endowment, एक money back, एक ULIP. जिस तरह से life insurance सेल होता है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो. लाइफ इंश्योरेंस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द इंश्योरेंस कंपनी. मैं अपने फैमिली का अर्निंग मेंबर हूं, मैं पैसा अर्न करता हूं जिसकी वजह से मेरा घर चलता है. व्हाट इफ आई एम नॉट देयर टुमारो? अगर उससे मेरे फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो मुझे एक इंश्योरेंस चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर मुझे लगता है मेरे ना होने से मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी तो मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. और अगर इंश्योरेंस चाहिए तो वो टर्म प्लान चाहिए. In case if someone wants to know more about term plan, I can tell, or else shall I proceed? Okay. So Please brief us about term plan. Okay. So term plan basically is something like your health insurance, or it's something like a car insurance. मैं आज अपनी फैमिली का अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, मेरी अपनी अर्निंग है जिसकी वजह से मेरा घर चलता है. मुझे ये डर है कि व्हाट इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली, मेरे किड्स की एजुकेशन, मेरी फैमिली की के फ्यूचर के बारे में. सो आई टेक अ कवर. वो कवर कितना होना चाहिए? आइडियली वो कवर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 टाइम्स ऑफ माय एनुअल इनकम. 10 to 12 टाइम्स ऑफ माय एनुअल इनकम का मतलब क्या होता है? इफ आई एम अर्निंग से 10 लाख रुपीस पर एनम, तो कम से कम 1 से सवा करोड़ का मेरा टर्म प्लान होना चाहिए. 1 से सवा करोड़ का टर्म प्लान मेरा क्यों होना चाहिए? कि मैं गॉड फॉरबिडन मैं नहीं रहा, माय फैमिली गेट्स 1.25 CR एज द मनी. उसको अगर मैं एक सिंपल सबसे सेफ FD में भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरी फैमिली इन्वेस्ट कर देगी, विच विल यील्ड से 5% अगर उस पे आएगा, तो भी 6 से 7 लाख रुपए उस पे एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा. और अगर वो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है तो शायद मेरी फैमिली वही स्टेटस ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाएगी जो मेरे रहते में करती थी फाइनेंशियली. यू गेटिंग? तो इसलिए इतना मेरा टर्म प्लान होना चाहिए. अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं रहा और उसके बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरा टर्म प्लान नहीं होना चाहिए. हम लोग प्रॉब्लम क्या होती है, वी वुड वांट टू बिलीव कि अगर मैंने 10 साल पैसे दिए, प्रीमियम दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो 10 साल तक मेरा प्रीमियम वेस्ट हो गया मनी, बिकॉज टर्म प्लान में कुछ भी वापस नहीं होता. क्या मैं जस्ट वांटेड टू रिट्रेट, टर्म प्लान इज द मोस्ट चीपेस्ट इंश्योरेंस. लाइक आई कैन टेल यू, आई एम 40 years of age. 40 साल की एज में अगर आज मैं अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाऊंगा तो मेरा एनुअल प्रीमियम विल फॉल एट अराउंड 20 से 22 हजार रुपए पर एनम. और इसमें ये why I said in the beginning that it's like a car insurance is like a health insurance. से suppose next year मैंने ये देखा कि मेरी liabilities खत्म हो रही हैं धीरे धीरे. My kids are married, वो अपना settle हो गए हैं, मैंने अपना घर बनाना था वो बना लिया है, I have a secured life now, I will stop paying premiums. मैंने टर्म प्लान एक रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था. अगर कल को वो रिस्क खत्म हो गया है, then why will I pay टर्म प्लान का प्रीमियम? So when I say life insurance होना चाहिए किसी का, तो it has to be term plan. When I say health insurance किसी का होना चाहिए, it is the most important thing. Even if you have a health insurance from your company, I still suggest एक छोटा सा health insurance personal level पे फिर भी होना चाहिए. And it is again very very cheap. कितना होना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया था, लाइफ इंश्योरेंस, ये थोड़ा सा पुराना प्रेजेंटेशन है इसलिए मैंने 8 to 10 टाइम्स लिखा है. उस समय FD के रेट्स ज्यादा थे. Currently I believe life insurance should be approximately 12 times of your annual earnings. हेल्थ इंश्योरेंस आपका आइडियल कितना होना चाहिए? Divide your age by 5 and multiply it by 1 lakh. Again, these are ideal scenarios. अगर आपको लगता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में you have a pre-existing disease, you have some
ग्लूकोज की प्रॉब्लम है, यू हैव अ बीपी प्रॉब्लम, यू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ा लीजिए. बहुत ज्यादा चीप होता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड वेरी वेरी एडवाइजेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये होना चाहिए. आपने अपना अनअवॉइडेबल कंजम्पशन किया. अनअवॉइडेबल कंजम्पशन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपका टर्म प्लान. आई एम सॉरी, वो था आपका रिस्क प्लानिंग. जब भी आपकी रिस्क प्लानिंग कंप्लीट हो गई, देन वी कम टू कंटिजेंसी प्लानिंग. कंटिजेंसी प्लानिंग मतलब अभी अचानक मुझे किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो व्हाट डू आई डू? मैं कहता हूँ एक काम करो, ये स्टॉक्स बेच दो, यहाँ की प्रॉपर्टी सेल कर दो. क्यों कर देते हैं हम लोग ये सब? लेट्स प्लान फॉर इट. लेट्स हैव अ कंटिजेंसी रिजर्व इन प्लेस. ये कंटिजेंसी रिजर्व, अगर मुझे कभी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आई विल टेक द मनी फ्रॉम देयर. ये मेरे लिए कंटिजेंसी रिजर्व होगा. So when I say, sorry, one question from my side. When you're talking about the risk planning, you talk about the term insurance and the life insurance in case. If I go for national pension scheme like that, वो अलग चीज है. अभी मैं NPS को कवर कर लेता हूँ. NPS has nothing to do with life insurance. Okay. But it's the same base where it's long term and it give me a money after my death or after my pension also. नहीं, अभी मैम इस क्वेश्चन को ना अगले 15 मिनट के लिए आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. 15 मिनट जैसे ही खत्म होता है, आई विल कवर NPS. Okay. Okay. So जब मैं वही करता, when we talk of contingency planning, यहाँ पे मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी. मैंने अपनी कंटिजेंसी के लिए अगर कुछ पैसा अलग रखा हुआ है और मुझे आज पैसे की जरूरत है, तो मेरा पैसा मुझे आज चाहिए. It should be that liquid. Within 24 hours, it has to come to me. So it couldn't be in say real estate. वो प्लॉट में नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे मालूम है उसको मुझे सेल करने में इट विल गेट मी सम गुड मंथ्स. वो पैसा स्टॉक्स में नहीं हो सकता, शेयर्स में नहीं हो सकता, बिकॉज रिस्क है. तो कंटिजेंसी प्लानिंग का, व्हेन आई टॉक अबाउट कंटिजेंसी प्लानिंग, सो द मनी शुड बी सेफ, द मनी शुड बी लिक्विड. यहां अगर आपको कंटिजेंसी प्लानिंग करनी है, आप अपना पैसा कहां रख सकते हैं? देयर आर टू प्लेसेस. यू कैन कीप योर मनी इन बैंक FD. यहां पे आप बैंक FD यूज कीजिए कंटिजेंसी के लिए. और otherwise you should use liquid funds, liquid and ultra short term mutual funds. Liquid and ultra short term mutual funds में आपका benefit क्या होता है? You get a tax benefit after 3 years, which you do not get in bank FDs. So unavoidable consumption किया मैंने, अपनी risk planning की मैंने, अपने आप को risk से protect किया, अपनी contingency planning कर ली. What is the ideal contingency amount? It is basically 3 to 6 times of your monthly earnings depending upon your lifestyle. जैसे अभी COVID, we just witnessed COVID. Everyone went through one of the worst times of our lives. मेरे पास अगर contingency planning होती, तो I don't think कि कोई भी अगर if someone went through a financial crisis, हम लोग जाते. अगर मेरे पास 3 से 6 महीने का एक अलग रिजर्व बना रखा है, डिपेंडिंग कि मेरी जैसी लाइफस्टाइल है, जितना स्पेंड थ्रिफ्ट में हूं, अगर उस हिसाब से मेरे पास एक अलग किटी बनी हुई है, और उस किटी को मैं सिर्फ उन्हीं कंटिजेंसीज में यूज करूंगा, अदरवाइज आई वोंट टच दैट किटी. सो व्हेन आई से 3 to 6 टाइम्स ऑफ योर मंथली अर्निंग्स, इट डजंट मीन कि आज आप 6 महीने की आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है. आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए, कल आप 4 लाख 5 लाख रुपए अलग कर दो उसके लिए. आई डोंट मीन दैट, बट स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर कंटिजेंसी रिजर्व. कि मे बी इन अ स्पैन ऑफ a year and a half, I am able to maintain a contingent kitty for myself. That is more important. मेरी रिस्क प्लानिंग हो गई, कंटिजेंसी प्लानिंग हो गई, देन कम्स माय गोल बेस्ड प्लानिंग. गोल बेस्ड प्लानिंग क्या होती है? कि एवरीवन हैज फाइनेंशियल गोल्स इन लाइफ. It is very very important to sit and identify those goals. अभी अगर हम लोग नॉर्मली किसी से मैं पूछता हूँ ना एज एन एडवाइजर कि बॉस आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, समवन हु इज 35-40 years of age एंड हु इज वर्किंग, जॉब में है वो, उसके 2-3 गोल्स के आगे तीसरा गोल आता ही नहीं है. किड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट, होम परचेज, वेकेशन.
कहीं ना कहीं हम लोग के जाके गोल्स यहाँ खत्म हो जाते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द गोल्स. गोल्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी खत्म नहीं होते हैं. व्हाट इज अ गोल? गोल इज एन एनी इवेंट which has an outflow of money. वो एक financial goal है. So it is very very important to sit, identify your financial goals in life, write down on a paper. उसका tenure लिखिए कि ये गोल according to me इस tenure पे है. उसकी आज की costing लिख लीजिए. So if I say कि I want to go for a Europe trip पे अगर मुझे जाना है तो उसकी आज की costing ये है, maybe I want to go there after 3 years. तो 3 साल बाद की उसकी अप्रोक्सीमेट ये कॉस्टिंग है. एंड लेट्स हैव अ गोल फॉर इट. अगर ये मेरा यूरोप ट्रिप एक गोल है, लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट. अभी से कर लेते हैं. द गोल कैन बी एज लॉन्ग एज 10 years, 15 years, 20 years. The goals can be as short as 1 साल, 1.5 साल, 2 साल. You should be aware of the time. You should be aware of a approximate cost of it. And the most important part, you should be aware of a goal. सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल को आइडेंटिफाई करना. गोल बेस्ड प्लानिंग कीजिए. डिसाइड कीजिए कि किस तरह से जो गोल बेस्ड प्लानिंग है उसके लिए मुझे किस तरह से प्रोसीड करना है. वेदर आई वुड वांट टू गो फॉर अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर इट, वेदर आई एम गोइंग टू गो फॉर अ मंथली इन्वेस्टमेंट ऑन इट बाय वे ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स, बाय वे ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs करके करूंगा, कैसे करूंगा. जब ये सब हो जाए उसके बाद व्हाट आई सजेस्ट इज इधर वेल्थ मैनेजमेंट करिए नहीं, उसके बाद लग्जरी लिविंग कीजिए. आप अपनी तरफ से हर तरह से सिक्योर्ड है, आपके गोल्स इन प्लेस हैं, आपकी कंटिजेंसी इन प्लेस है, आपका रिस्क इन प्लेस है. एंजॉय लाइफ. लेकिन ये मैंने ये आपको बोला, बट इज इट दैट सिंपल कि मैंने बोला और ये हो गया? नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल. प्रॉब्लम कहाँ आती है? फाइनेंशियल इलिटरेसी. हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग इतना प्रॉपरली प्लान कभी नहीं कर पाते. बिकॉज हम लाइक आई वाज टॉकिंग टू पुलकित बिफोर दिस सेशन अभी, तो मैं यही कह रहा था, हम लोग करते क्या, हम लोग किस तरह से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं. हम लोग ये लेते हैं कि मैं कॉफी पे शाम को अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ मैंने पैसा लगाया और मुझे अच्छा रिटर्न मिला है, मैं कहता हूँ मेरा भी पैसा लगा दो यहाँ पे, विदाउट ट्राइंग टू एनालाइज कि मेरे उस फ्रेंड ने कब लगाया है, कितने टाइम होराइजन के लिए लगाया है, वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार रहा, मेरे उस फ्रेंड की लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं. हम कोई चीज जज नहीं करते. जस्ट बिकॉज एन इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर समवन, वी बिलीव वो मेरे लिए भी अच्छा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टमेंट्स हम इसी तरह से करते हैं. आस्क योरसेल्फ एट हार्ट. सो ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए. दूसरा, बिहेवियरल प्रॉब्लम. हमें मानते हैं आई डोंट नीड इट, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग की. reluctance to know more. Not knowing is not wrong, not wanting to know is wrong. हम जानते नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम जानना चाहते भी नहीं है कि मैं जहां पैसा लगा रहा हूं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं. देयर इज नथिंग दैट वी वांट टू नो. हम लोग सिर्फ एक चीज बताओ, कहां साइन करना है, कितना रिटर्न आ जाएगा. सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. Only past returns are important. No one sees risk-adjusted return. हमने ये देखा कि in the last 1 year this fund has given so much returns. 3 साल में इतना रिटर्न मिला है, 5 साल में इतना रिटर्न मिला है. बट बॉस, उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए रिस्क कितना लिया गया है वो भी तो देखो आप. Whether you are able to bear that risk, आप उस रिस्क की कॉस्ट पे करने के लिए रेडी हो, is something that you should ask for yourself. So do not see only returns, always look at risk adjusted returns. और एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मेरे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, जब होगा पैसा तब मैं देखूंगी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्या करना है क्या नहीं करना. So again, please try and understand. बड़ा पैसा, छोटा पैसा, 5,000 रुपए महीना या 50,000 रुपए महीना is not important. Important is to take the first step towards it. स्टार्ट कीजिए उसको. रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं सब खुश होऊंगा, वो कभी नहीं होगा. इट इज नेवर गोइंग टू हैपन. ओवर डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स, क्या जी बिजनेस, CNBC आवाज, अगर उन्हीं को सब कुछ पता है तो फिर व्हाई डू पीपल लूज ऑन मनी ऑन कैपिटल मार्केट्स? सभी लोग सुनते हैं वो.
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगेन जैसे मैंने ये पुलकित से मेरी हम लोग की काफी देर बात हो रही थी, मैं सबसे यही कह रहा था कि ये जो आता है टीवी में, न्यूज़पेपर में, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमाइज्ड नहीं होती है आपके लिए। इट इज समथिंग लाइक न्यूज़पेपर ने आपने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा कि आज एरीज के लिए आज मंगल भारी है और शनि भारी है। there are 20 crore लियोज इन द वर्ल्ड। वो दिन हर लियो के लिए वैसा नहीं होने वाला जैसा उस न्यूज़पेपर में प्रिंटेड है। वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है लियोज के लिए। आपकी कस्टमाइज्ड क्या होगा, वो दैट इज डिफरेंट। सो डू नॉट रिलाई टू मच ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज चैनल हो, वेबसाइट हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हो। एक और बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपका अपना पोर्टफोलियो रिव्यू ना होना। आपने लिया, किसी एक्सपर्ट से पूछ के पैसा लगा दिया, बट रिव्यू इट ऑन 6 मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, रिव्यू करिए आप उसको। और दूसरा, ब्लाइंड फेथ्स ऑन एजेंट्स एंड बैंकर्स। बैंक वाला है जो बोल रहा है सही बोल रहा है, वो भी अपनी उसको भी बेचना है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एवरीवन इज सेलिंग यू अ प्रोडक्ट, उसमें उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। प्लीज रियलाइज दिस। इन सब के जो होता है क्या किया जाता है, देयर समथिंग कॉल्ड अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई वुड वांट टू स्किप दिस, ये मैं अपना प्रमोशन की बात नहीं है। सो ये एक वो सर्टिफिकेट है मेरा जो मैंने बताया था, मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं रजिस्टर्ड विद सेबी एज एन एडवाइजर। मैं ये स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सम मिथ बस्टर्स। इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। हम लोग ये मानते हैं इंश्योरेंस, मैं किसी से पूछता हूँ आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कहते हैं मैंने इतनी LIC पॉलिसीज ले रखी हैं, एक मेरे पास न्यूयॉर्क की एक पॉलिसी है। इंश्योरेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, दोनों का ग्रास रूट अलग है। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आपको अपने लाइफ की प्रोटेक्शन चाहिए या आपको अपने पैसे की ग्रोथ चाहिए? आपको अपने लाइफ की प्रोटेक्शन चाहिए, इंश्योरेंस कीजिए। दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा है ये बुरा है, बट इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? सो इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंश्योरेंस करना है इंश्योरेंस लीजिए। बहुत बड़ा मिथ है ये। इस पे अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए हो, प्लीज मुझसे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वील डिस्कस। दूसरा, हम लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ओनली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन वी टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में FDs के भी सब्स्टिट्यूट है, म्यूचुअल फंड में गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है, म्यूचुअल फंड में शेयर्स का सब्स्टिट्यूट है, म्यूचुअल फंड में सेविंग बैंक अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है, म्यूचुअल फंड में PPF का सब्स्टिट्यूट है। आप बताओ, अगेन बेसिक वही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट टैक्स प्लानिंग है, आपकी रिक्वायरमेंट पैसे की ग्रोथ है, आपकी रिक्वायरमेंट पैसे की सेफ्टी है, आपकी रिक्वायरमेंट मंथली इन्वेस्टमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? I am getting all services free from my agent and banker. ये मैंने पहले ही कवर कर लिया। There is nothing called free. There is no free lunch. अगर आपका बैंकर आपको फ्री में कुछ आया और ऐसे ही देके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। प्लीज ट्राई एंड एनालाइज कि जो बैंकर आपके पास आ रहा है, जो बैंक RM आपके पास आ रहा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसको नॉलेज कितनी है, उसने ऐसा कौन सा पढ़ाई कर ली है, ऐसा कौन सा कोर्स किया है कि वो आपको ये डिसाइड कर सके कि आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स अवेलेबल इन द मार्केट, आपके लिए ये स्कीम बेस्ट है। कैसे वो डिसाइड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाई साहब ऐसे हैं जो 5 बजे तक HAL में नौकरी करते हैं, 6 बजे के बाद घर में बोर होते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजरी करने लगते हो? सर, सब लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि एवरीवन नोज एवरीथिंग। We all are doctors, we all are lawyers, we all are chartered accountants, and एक ये you don't need a financial advisor, ऐसा नहीं है। That is what I'm saying. Let a professional do his job. 2 most important points to consider before deciding any investment. आप लोग पेपर्स में देखते होंगे कि सब रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने पैसा लगाया होता तो आज यहां तक आ गया होता। पेपर्स में सब कुछ बहुत फ्लारी होता है, बट हाउ मेनी पीपल डू यू नो हु हैव एक्चुअली अचीव्ड इट? आई डोंट थिंक, मतलब मैं बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिला हूं। आई विल बी ग्लैड टू नो अगर आप मिले हो तो। वो इसलिए नहीं मिले बिकॉज पीपल डू नॉट कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। क्या टाइम होराइजन है और क्या उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है।
when I say risk taking capacity, it is about the attitude also. मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही नहीं पसंद है। मुझे अपने पैसे की वैल्यू 1 लाख रुपए की वैल्यू 99,500 रुपए देखना नहीं पसंद है। मेरा बीपी ऊपर नीचे होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है यार। तो बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि मुझे रिस्क नहीं लेना। डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय पीपल हु टेक रिस्क। देन इन इस ग्रीड और फियर के इमोशन को कंट्रोल कीजिए, टाइम होराइजन की जानकारी रखिए। टेक माय वर्ड्स इन राइटिंग, बोल्ड में अंडरलाइन करके, यू विल नेवर एंड अप हैविंग बिटर एक्सपीरियंसेस इन कैपिटल मार्केट। Most of the problems arise due to non-clarity of these two aspects, time and risk. I'm almost done. कोविड में अपनी नियर टर्म लिक्विडिटी एनालाइज कीजिए, क्रेडिट कार्ड्स को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में यूज कीजिए, पैनिक सेलिंग्स अवॉइड कीजिए मार्केट में। अगेन जैसा मैंने अभी पहले कहा था, ग्रीड एंड फियर के इमोशन को कंट्रोल में रखिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, अपने सेविंग्स को रिव्यू कीजिए। Every day is not same, uncertainties happen. Thank you. I am almost done with my presentation. Open to questions. किसी की कोई query हो? Hello. Oh, Wow, I am the only one जिसका video on है. Oh my God. As I asked about the NPS, so just want to know the clarification of Yeah. So NPS क्या होता है मैम? तो इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आपकी जो भी आप अर्निंग्स हैं, उस अर्निंग्स के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 80C ये कहता है कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है सेक्शन 80C के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उतने से आपकी इनकम कम हो जाएगी और उतने में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो 2 साल पहले इसमें एक और ये सेक्शन 80CCD इंट्रोड्यूस हुआ था, which is called NPS। इसमें अगर आप एडिशनल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पे टैक्स की छूट मिलेगी। उसके फीचर्स ये हैं कि आपको उसमें NPS का पैसा मैनेज करने की परमिशन 5 लोगों के पास है। दैट इज ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड। At the end of the day, these mutual fund companies manage your NPS money। आप जब भी एनपीएस में डालोगे आपको चूज करना पड़ेगा आप इन 5 में से किससे अपना पैसा मैनेज करवाना चाहते हो। दूसरा उसमें आता है कि आप पैसा वही इक्विटी और डेट में जाता है जैसे म्यूचुअल फंड में कैपिटल मार्केट में जाता है। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपनी एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली चूज कर लीजिए इक्विटी और डेट, या आप एक्टिवली खुद से चूज करना चाहते हैं इक्विटी और डेट। यू हैव एन ऑप्शन टू डू दैट। अगर आप खुद से चूज करते हैं, इवन देन द मैक्सिमम इक्विटी दैट यू कैन गो इज 75%। पैसा आपका you invest every year, your money you can withdraw your money after the age of 60। जब आप 60 साल पे पैसा वापस लेते हो तो आप मैक्सिमम 60% तक एक साथ पैसा वापस ले सकते हो। रिमेनिंग 40% हैज टू बी कंपल्सरीली बाय वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी मतलब पेंशन के फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है वो 40% पैसा। और वो जो आप पेंशन के फॉर्म में लोगे, क्योंकि वो अगेन पेंशन है, तो वो आपकी इनकम में ऐड होके जो भी उस समय आपका टैक्स स्लैब होगा उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। Okay, but अगर इस time period पे if you get like if you died or something, then the entire Ma'am, can you please be a bit loud? Okay, I was asking, अगर मैंने MPS में इन्वेस्टमेंट किया है और after some time like कोई भी ड्यूरेशन के बाद if I died, the amount goes to the nominee or nominee। देखिए किसी भी financial capital pension ways to them also। नहीं, वो आपका फिर अगर क्योंकि वो आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, उनके नाम से पेंशन नहीं चलेगा। जी जी जी। अच्छा। And how much the interest level comes over it or its benefit? मैम इंटरेस्ट इसीलिए नहीं बता सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैसा आपका कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी एंड डेट में। ओके। तो एक मतलब गारंटी 1 रुपए की भी नहीं होती है, बट क्योंकि कैपिटल जैसे मैंने बताया कि यही म्यूचुअल फंड हाउसेज ही आपका पैसा मैनेज करते हैं, उसमें भी कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट। देखिए एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाएंगे, बैंक एफडी या फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होते चले जाएंगे।
अगर आप आज की डेट में यूएस में देखोगे, डू यू हैव एनी आइडिया यूएस में इस समय बैंक, अगर आप एफडी करेंगे तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूएस में? एनीवन वुड लाइक टू पॉइंट आउट यूएस में क्या एफडी रेट है? 1 to 2%. मैम बहुत ज्यादा बता, कौन बोला? अच्छा मोनिका मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. I think it should be 0.5 to 1. 0.25% है आज की डेट में. It's 0.25%. So इसीलिए जैसे जैसे we'll go from developing to develop, the rate of interest tend to reduce. हम लोग जैसे जैसे अगर डेवलप करेंगे एफडी या फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स कम होंगे और कैपिटल मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही बढ़ेंगे. डू यू नो, अगर आप स्विस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, सो यू हैव टू पे स्विस बैंक टू कीप योर मनी देयर. स्विस बैंक आपको आपकी एफडी पे 1 रुपया नहीं देता, आपको स्विस बैंक को पैसा देना पड़ता है पैसा रखने के लिए, वहां पे एफडी करने के लिए. वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता है. ऐसा क्यों? मैम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है वहां पे, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. स्विस बैंक का इतना नाम है, फॉर व्हाट रीजन? अरे अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताने वाली चीज है ना. This is a good one. They are taking money from us and then still they have so much of name. That was the best question, Monica. Why do they take money? I think we all know the answer to it. Okay, Anurag, I have a question. Yes, That ma'am. suppose we were talking about this जो ये हमारी लाइफ टर्म प्लानिंग थी, तो वो हमें इसलिए लेना चाहिए कि if anything happens, so it is for the security of the family, nothing to do with like money which we'll enjoy during our lifetime, right? Right. So Right. मतलब basically it's a security which will provide Yes. which after we die it will be a comfort for the family and it has nothing to do with us. आपने Yes. 15 दिन भी अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये पक्का है कि आपको अपना वेट बढ़ता नजर आ जाएगा. अरे लेकिन मोनिका अगर मैम, आप म्यूट कर 2 लीजिए. महीने फॉलो करें प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए. अगर मोनिका आपको मैम, ये म्यूट कर वेट लीजिए. नहीं हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत मोनिका? जाना. मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मामा का जिन Devika, And can you so one turn more- her mic off, please? She doesn't realize. Okay, and my second question is, जैसे मेरी एक FD वो हो रही है, mature हो रही है, 2 FD, and suppose if I get a sum total of 2.5 से 3 लाख रुपए, so what should be my approach if I want to see my growth? Okay. For the benefit of all, मैं एक मॉक आपको बताता हूँ किस तरह से आप what questions you should ask to yourself. चलिए आंसर 2-3 क्वेश्चंस आप मेरे आंसर करो. आपके पास आज की डेट में मान लीजिए 3 लाख रुपए हैं. मेरा पहला क्वेश्चन होगा, अगर आपको 3 लाख रुपए डिप्लॉय करने हैं, क्या टाइम होराइजन आप देख रहे हो? कितने समय के लिए अप्रोक्सीमेट पैसा? क्या 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या टाइम होराइजन आप नहीं, देख रहे हो? पैसे को कोई बस डाल के भूल जाना है 10 साल के लिए. ओके, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, अगर 10 साल के लिए आप पैसे को भूल रहे हो, 1 साल बाद 3 लाख की वैल्यू 2,80,000 है. विल दैट गिव यू स्लीपलेस नाइट्स? Yes. Yes, okay. I'm happy that मतलब you're honest on this thing. Yes, मुझे वो देखना अच्छा नहीं लगेगा. So अगर मेरे ये 2 क्वेश्चन हैं, which means आपका टाइम होराइजन ज्यादा है, बट आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है. देखिए, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू पीस ऑफ माइंड. इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करते हो कि आप रिलैक्स्ड रहो, खुशी मिले. इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हो कि जब आप बेड पे जाके लेटो तो फिर राम 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 करने से कोई फायदा नहीं, पता नहीं कहाँ लगा दिया, क्या होगा. There's no point in doing that. इसका मतलब you should go into instruments which have very very least risk. Get into debt funds then. Debt funds, capital market के वो instruments होते हैं which are to an extent as good as FDs, not exactly FDs. उसका best part ये होता है कि after 3 years, the moment you complete 3 years in debt funds, you start getting indexation benefit. थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज आपने 3 लाख रुपए लगाए, 5 साल बाद आपने, एक एग्जाम्पल मानता हूं, 4.5 लाख रुपए निकाले. तो अगर आपने यही चीज बैंक एफडी की होती तो पूरे 1.5 लाख रुपए पे आप टैक्स देते. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर यही चीज डेट फंड में आप करोगे तो डेट फंड में, क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स, तो डेट फंड में एक तरीका होता है कैलकुलेशन का, आप गूगल करना, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से आप ये कैलकुलेट करोगे कि 3 लाख रुपए की वैल्यू जो 2015 में 3 लाख रुपए थे,
क्यों, और 2020 में अपने पैसे निकाले हैं, उस 3 लाख की वैल्यू इनकम टैक्स की नजरों में क्या हो गई? फॉर एग्जाम्पल वो आएगा, उस 3 लाख की वैल्यू इनकम टैक्स की नजरों में 3,80,000 रुपए हो चुकी है। तो अब आपका गेन इनकम टैक्स मानेगा केवल 70,000 रुपए का ही है। 3,80,000 रुपए के ऊपर आपको जितना गेन हुआ है, केवल उसी पे आपको टैक्स देना है, नॉट ऑन द एंटायर गेन। Okay, Anderson, what about buying gold bars? ओके, ये बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है। गोल्ड, व्हेन आई से गोल्ड, तो पहले तो आप ये समझो, आप गोल्ड इज, व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ जो गोल्ड रिटर्न दे रहा है वो गोल्ड रिटर्न नहीं दे रहा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं पिछले 6 महीने को छोड़ दूं, these COVID times, uncertain times, gold has not given very good returns. Gold has given a return of around 3.5 to 4%. हमारे यहाँ, हमारी देश में गोल्ड माइंस नहीं है, गोल्ड पैदा नहीं होता है, हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। और जो हमारे यहाँ गोल्ड रिटर्न देता है वो गोल्ड रिटर्न नहीं देता, वो बेसिकली रुपये और डॉलर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमें रिटर्न मिलता है। सो अगर किसी को गोल्ड लेना है, वो या तो वो है उसके पास कैश की अनअकाउंटेड इनकम है, उससे गोल्ड लेना है, बिल्कुल आप गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन कुछ भी लेना चाहें ले सकते हैं। अगर अकाउंटेड इनकम है तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर ई गोल्ड। ई गोल्ड 2-3 तरह के होते हैं। ई गोल्ड आप ईटीएफ के फॉर्म में, गोल्ड ईटीएफ आते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आपको गोल्ड सेविंग्स फंड्स मिलते हैं, गोल्ड सेविंग्स फंड्स ले सकते हैं। फिर आपको बैंक से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मिलते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। आपको अगर आप इस तरह से गोल्ड लेते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपको प्योरिटी का कोई बेनिफिट, कोई टेंशन नहीं है कि मेरा गोल्ड प्योर है कि नहीं। आपको उसकी सेल करने का कोई टेंशन नहीं है, आपको उसकी स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं है। Okay. Out of these 3, I always suggest sovereign gold bond should be the last option. But is it a good option to invest the money? मैम, अगर किसी को लगता है लॉन्ग रन में, मतलब जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज 7-year प्रोडक्ट, अगर आप 5-6-7 साल के लिए लगाते हैं, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद 6 to 7% काइंड ऑफ रिटर्न, यस, अ गुड ऑप्शन। ये आपके पोर्टफोलियो का 5-10% पोर्शन तो हो सकता है, बट अगर आपको कहो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैं 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लूं, बिल्कुल गलत है। लाइक 2014 से 2018 गोल्ड हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स 4 साल में। मेरे पास हिस्ट्री आप कहोगे तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, या आपको रोली इंडिविजुअली मैं शेयर कर दूंगा आपके नंबर पे। तो सो गोल्ड एज एन एसेट क्लास, 5-10% ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज गुड। मोर देन दैट इज नेवर एडवाइजेबल एज एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड खरीदना है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज्वेलरी खरीदो, पहनो, एंजॉय करो। Do not consider gold as an investment. So Anurag, I have a question that of Yes, the sure. 3 e-gold that you were talking about, which one is the best? I mean, you said that gold bond, sovereign gold should be the last option. Which one would be the first I'll tell you one? why I'm saying this. I'll tell you why I'm saying this sovereign gold bond should be the last option. Is because sovereign gold bonds में liquidity नहीं होती है। सिर्फ एक ही sovereign gold bonds में एक benefit होता है, एक drawback है। The benefit of sovereign gold bond is कि जो gold आपको रिटर्न देता है उससे 2.5% रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिलता है। So if gold has given you a return of say 5%, there you will get 7.5%. Of course that 7.5 taxable, जो 2.5% एक्स्ट्रा आपको मिलता है वो taxable होता है। So tax कटने के बाद it is actually 7% only. But उसमें मेरे पास exit option नहीं है 7 साल से पहले। तो the point is whether I am ready to compromise on my liquidity for extra 1.5%. Right. मतलब मुझे वही बेनिफिट, अगर मैं उस 1.5-2% को छोड़ देता हूं तो वही सारे बेनिफिट्स मुझे गोल्ड सेविंग्स फंड्स में और गोल्ड ईटीएफ में मिलते हैं। Okay. तो मैं एक्स्ट्रा 1% के लिए, मतलब ये मेरा एज एन एडवाइजर मेरा मानना ये है कि जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा 1-1.5% आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लिक्विडिटी पार्ट। Okay. Thank you.